Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this basic session, we are going to look at basics of ratio and proportion. So it is important to watch these basic sessions before you start your preparation for any entrance exam. It will help you clear all the concepts which you might have forgotten, है ना? And अपना हर एक entrance exam का syllabus जो है वो 8th, 9th, 10th standard का है. तो ये ratio proportion variation आपने पढ़ा हुआ है 8th, 9th, 10th standard में. अगर आप भूल चुके हो तो you can watch it and revisit these concepts. ठीक है? तो ratio is comparison of two quantities which are in same unit, and it is comparison of two or more quantities which are in same unit. For example, salary of Mr. A is 200 and that of Mr. B is 250. Then the ratio of the salaries will be how much? Ratio of the salaries to 200 upon 250. So this is 0, this 0, this is 5 4s are, this is 5 5s. So their ratio is 4:5. Now few important things. The unit of measurement of the two quantities in a ratio must be same. Okay, the unit of measurement or unit of measurement of the two quantities in the ratio must be same. That is, we can't take the ratio of some kgs with some dozens of banana, है ना? मतलब या फिर आपके हाइट का और मेरे वेट का रेशियो नहीं ले सकते, ये वो कहना चाहते हैं, क्योंकि यूनिट सेम रहना चाहिए. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ or division of each term of the ratio by the same non-zero number does not affect the ratio. For example, there is a ratio A is to B, which is 3:4. If I multiply this A by 3 and B by 3, what I'll get? 3A is to 3B. It is still not affecting the ratio. है ना? For example, इसको into 3 कर दिया, I'll get 9:12. It is still not affecting the ratio. ठीक है ना? तो मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, उससे रेशो को फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 1:2 इज 1/2:1/3 ऐसा दे रखा है, अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? सॉरी, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है. सो एलसीएम ऑफ 2 और 3 इज 6. इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द रेशियोज बाय 6, आई विल स्टिल हैव द सेम रेशियो और द ओरिजिनल रेशियो, which is nothing but 6 divided by 2 is 3. 6 divided by 3 is 2. तो इफेक्टिव रेशियो हमारा 3:2 का आ जाएगा. ठीक है? ऑल्सो रेशियोज कैन बी कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, है ना? तो 3 चीजों का भी रेशियो ले सकते हैं, 4 चीजों का भी ले सकते हैं, 5 चीजों का भी ले सकते हैं. ठीक है ना? मान के चलो 2:3:4 है, तो हम बोल सकते हैं A is 2x, B is 3x, C is 4x. C is 4x. ठीक है ना? Where x is nothing but your proportionality constant, है ना? याद आ रहा होगा आपको, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, proportionality constant. ठीक है? So these are your ratios, है ना? ये बेसिक पढ़ लिया. क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, पहले proportion देखेंगे. Let's understand the concept of proportion with the help of following example. Suppose a fruit teller tells you that the price of oranges is ₹40 a dozen. That is ₹40 for 12 oranges. If you want to buy 6 oranges, how do you determine the cost? If you want to buy 6 oranges, how do you determine the cost? As the number of oranges is half of 1 dozen, their cost also has to be half. है ना? पहले 12 oranges 40 के थे. अभी number of oranges is half of 1 dozen. The cost also has to be half. Therefore, the cost of 6 oranges is half of 40, that is 20. है ना? अगर आप डिवाइड करके देखो तो ये 12/6 is equal to 40/20. In other words, cost of oranges is proportion to their numbers. ठीक है? Mathematically, proportion can be divided as follows. एक तो ये रहता है, दो टाइप के proportions रहते हैं. एक रहता है डायरेक्ट proportion और एक continuous proportion. ठीक है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में A/B इज इक्वल टू C/D रहता है, जैसा यहाँ पे दे रखा है. ठीक है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में A/B
इज इक्वल टू बी अपॉन सी ऐसा दिया हुआ है ना। देखो बी 2 बार आया है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको सेकंड प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको सेकंड प्रोपोर्शनल कहते हैं, या फिर मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, मीन प्रोपोर्शनल, एंड सी क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, बी विल बी अवर मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो ये तो बेसिक्स है, और थोड़े से एक दो टाइप के क्वेश्चंस या फिर एक दो वर्क डिफरेंट कंसेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। आई विल एक्सप्लेन देम व्हाइल सॉल्विंग द एग्जांपल्स। ठीक है ना। अभी एग्जांपल सॉल्व कैसे करना है, whenever you come to the screen, you pause the video, you try it on your own, and उसके बाद सॉल्यूशन दे, तो ही वो फायदे का है, सिर्फ वीडियो देख के फायदे का नहीं। ठीक है। डिवाइड 480 इन द रेशियो 1:2:3। 480 को अपने को 1:2:3 में डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो मान के चलो ये x, ये 2x, ये 3x है ना। टोटल कितना हो जाएगा, है ना, ये x प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल हो जाएगा 480। दैट इज 6x इज इक्वल टू 480, दैट इज x इज इक्वल टू 480 by 6, दैट इज 80। x इज इक्वल टू 480 by 6, दैट इज 80। ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4. If the total marks obtained by him in 3 subjects is 390, ठीक है ना। If the total marks obtained by him in 3 subjects is 390, find the marks in each of the subject। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा ना। x की वैल्यू 80 आई, 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 into 80 दैट इज 160, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 into 80 दैट इज 240। तो 480 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 1:2:3 के रेशो में, तो वो 80, 160, 240 हो जाएगा। ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स वर इन द रेशो 1/2:1/3:1/4। मैं क्या बोला, आई कैन मल्टीप्लाई दीज रेशोज बाय अ सर्टेन वैल्यू and the effective ratio will not change. Let us say, what is this n? N is nothing but LCM of 2, 3 and 4. LCM of 2, 3 and 4 will be 12. ठीक है ना। 12 से मल्टीप्लाई करता है, 12/2 is to 12/3 is to 12/4, जिससे मेरे को क्या मिला, 6 is to 4 is to 3। ठीक है। But what is this? It is 6x, 4x and 3x ना, है ना। Why? Because x is your proportionality constant. If the total marks obtained by him in 3 subjects were 390, मतलब तीनों सब्जेक्ट में मिला के इतने मार्क्स मिले, एंड तीनों सब्जेक्ट में मिला के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने मार्क्स मिले, 390। तो इक्वेट कर दिया, दैट इज 13x इज इक्वल टू 390, दैट इज x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30। तो फाइंड द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर x इक्वल टू 30 है तो ये 90 हो जाएगा, 3 into 30 90, 4 into 30 is 120 and 6 into 30 is 180। तो ये उसके मार्क्स है 3 सब्जेक्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट, इन अ वनडे क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कुंबले कंसीड्स 27 रन्स इन 9 overs and 2 balls, है ना। तो 9 overs मतलब 9 into 6 that is 54 and plus 2 that is 56 balls, 56 balls, while Pathan conceded 31 runs in 10 overs। तो कुंबले का क्या है, उसने 27 रन्स दिए इन 56 बॉल्स। ठीक है। जबकि पठान ने क्या किया, पठान ने कंसीड किए 31 रन्स इन 10 ओवर्स। 10 ओवर्स मतलब 60 बॉल्स, है ना, एक ओवर में 6 बॉल्स। सो हु हैड अ बेटर परफॉर्मेंस, है ना, मतलब किसने कम रन्स दिए हैं कंपैरेटिवली, ये बताना है अपने को। किसने कम रन्स दिए हैं कंपैरेटिवली, ये बताना।
सो अगर ये 28/56 होता तो इक्वल टू 1/2 होता है ना। 28/56 होता तो इक्वल टू 1/2 होता। अभी 27/56 तो छोटा ही रहेगा ना 28/56 से, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो गया। 27/56 ये तो छोटा ही रहेगा 28/56 से। ठीक है, तो ये 1/2 से भी, है ना, ये वाली चीज जो है ये 1/2 से भी छोटी रहेगी। अभी 30/60 होता तो वो इक्वल टू 1/2 होता। बट 31/60 ये तो 30/60 से बड़ा रहेगा, मतलब वो 1/2 से बड़ा रहेगा, है ना। तो किसने ज्यादा रन कंसीड किए पर बॉल? पठान ने ज्यादा रन कंसीड किए। सो हु इज अ बेटर बॉलर? कुंबले। नेक्स्ट क्या बोला है? 0.75 is to x, मतलब 0.75 अपॉन x इज इक्वल टू 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इधर आ जाएगा, 8 इंटू 0.75 अपॉन 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज हाउ मच? 6, है ना। 75 8 are 600, 0.75 into it will be 6 upon 5। x की वैल्यू कितनी आई? 1.2। What is the value of x? 1.2। 1.2। A, B and C are in continued proportion. A, B and C are in continued proportion. If A is equal to 100, C is equal to 25, है ना। continued proportion मतलब ये ऐसा कुछ तो भी आएगा, ठीक है, which is A upon B is equal to B upon C। We have to find out the value of B। तो A की वैल्यू है 100, है ना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसा रहता है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसा रहता है, ठीक है। A की वैल्यू है 100, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C की वैल्यू 25। तो ये कितना है? B स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 100, विच इज B इज इक्वल टू 5 इंटू 10, दैट इज 50। B की वैल्यू कितनी आई हमारी? 50 आई। सिंपल है एकदम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ A upon B is equal to 2/3, if A upon B is equal to 2/3 and B upon C is equal to 2/5, we have to find out A is to B is to C। सिंपल है। A is to B is 2:3, B is to C is 2:5। तो A is to B is to C क्या हो जाएगा? A is to B is to C क्या हो जाएगा? अभी मेरे को बताओ, ये B कॉमन वेरिएबल है, बट इनकी वैल्यू कॉमन नहीं है ना। एक जगह 3 है, एक जगह 2 है। इसको कॉमन वैल्यू पे लेके आते हैं, लेट अस से वी टेक द एलसीएम, है ना। इसको कॉमन वैल्यू पे लेके आते हैं, लेट अस से वी टेक द एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज व्हाट? 6। एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज व्हाट? 6, है ना। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 15, है ना। क्योंकि रेशियो को अगर मैं इस वेरिएबल को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाले वेरिएबल को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो रेशियो मेंटेन्ड रहेगा, है ना। तो वो रेशियो मेंटेन रखने के लिए मेरे को इंटू थ्री करना होगा। अभी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस 2 शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4:6:15, है ना। 4:6:15, तो A is to B is to C की वैल्यू क्या है? 4:6:15, है ना। 4:6:15, ठीक है। Now divide 4800 between A, B and C in the ratio 3:2:1। 4800 in the ratio amongst A, B and C in the ratio 3:2:1। मतलब A को हम देंगे 3x, B को हम देंगे 2x एंड C को हम देंगे x, ठीक है ना। अभी 3x plus 2x plus x total should be equal to 4800, which is 6x is equal to 4800, which is x is equal to 800।
x इज इक्वल टू, है ना, 40 डिवाइडेड बाई 6 इज 8, तो 800 आ जाएगा। तो ए बी सी को कितनी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू 800, इसकी वैल्यू 2 इंटू 800 दैट इज 1600, इसकी वैल्यू 3 इंटू 800 दैट इज 3 into 800 that is 2400, that is 2400, ठीक है ना? So these are the values of A, B and C, 2400, 1600, 2400, 1600 and 800, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, 3 numbers are in the ratio 4:3:1, मान के चलो x, y, z, ये क्या है 4:3:1, तो x की वैल्यू मैं 4a, y की वैल्यू 3a, z की वैल्यू a बोल सकता हूँ क्या? जरूरी नहीं है ना कि हर बार x ही आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहे, आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो a भी हो सकता है, कुछ कोई भी वेरिएबल हो सकता है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 104, उनका सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 104, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 104। तो x स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 104, which is 16a square plus 9a square plus a square is equal to 104. That is 26a square is equal to 104. That is a square is equal to 104 upon 26. That is 4. So a is equal to 2. And a square is 4. A is equal to 2. We have to find the numbers. So if a is equal to 2, so 4 into 2 is 8. X की वैल्यू आ जाएगी 8. Y की वैल्यू आ जाएगी 3 into 2 that is 6 and Z की वैल्यू तो 2 ही आएगी. So those three numbers are 8, 6 and 2. Those three numbers are 8, 6 and 2. ठीक है? If three numbers are in the ratio 1:3:5, ठीक है? If three numbers are in the ratio 1:3:5 and their sum is 108, then the largest number is what? Let us say हमारे पास है P, Q and R. इनका रेशियो है 1:3:5. तो मान के चलो M, it would be M, 3M, 5M, where M is the proportionality constant. हर बार X नहीं लेना है, कभी A लेंगे, कभी M लेंगे, कभी B लेंगे, कभी Z लेंगे, है ना, जो मन में आया वो, ठीक है। तो M, 3M and 5M and their sum is 108. So P plus Q plus R is equal to 108, which means P की वैल्यू M, Q की वैल्यू 3M, R की वैल्यू 5M is equal to 108, which is 9M is equal to 108. M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 by 9 that is 12. तो M की वैल्यू हो जाएगी 12. तो 5M will be equal to 60, है ना। उन्होंने पूछा क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू बताओ बोले। लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्वियसली 5M रहेगी, इट वुड बी 60. 5 into 12 that is 60, ठीक है ना। ये 5 into 12 that is 60. Then Abhay's basic salary and allowances are in the ratio 7:4. तो basic salary and allowances 7:4, मतलब 700-400 ऐसा मान के चलो. There is an increase of 20% in basic salary. 20% से basic salary increase करना, and allowances go up by 60%. तो 60% से allowances बढ़ेंगे. What is the ratio of his basic salary and allowances after increase? अभी मेरे को यहाँ पे बताओ. 10% would be 70, so 20% would be 140, है ना. 10% of 700 would be 70, 20% would be 140. तो new base salary would be how much? 840, है ना. 700 plus 140 is 840. Also 400 का 60%, 400 का 60%,
400 का 60%, that is 10% would be 40. 60% कितना हो जाएगा? 240, है ना? 10% of 400 would be 40. 60% कितना हो जाएगा? 240. 240 ऐड करेंगे तो 640 हो जाएगा, है ना? 400 plus 240 would be 640. They are asking us what is the ratio of the basic salary and allowance after increase. Increase होने के बाद उनका रेशियो क्या रहेगा? It would be 840 is equal to 60, 640. ये zero गया. Divide by 4, 21. Divide by 4, 60. तो 21:16 आंसर आएगा, which is option C. 21:16 ऐसा आंसर आएगा, which is option C. Next, an alloy is made up of copper, zinc and tin. Copper, zinc and tin. Copper, zinc and tin. Tin क्या रहता है? Sn रहता है ना? If it contains copper and zinc in the ratio 3:5. So copper and zinc is in the ratio 3:5. And the ratio of copper and tin is 5:3. Copper and tin is 5:3. What is the fraction of tin in that alloy? Common variable क्या है? Copper. Common value है क्या उसकी? एक जगह 3 है, एक जगह 5 है, तो हम उसको कॉमन वैल्यू पे आएंगे लाएंगे, विच इज बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 5, विच इज 50. क्या किया है? 15 into 3 किया है, तो ये 3 into 3 करना पड़ेगा, 9 आ जाएगा. कॉपर इज टू जिंक, कॉपर इज टू 10. क्यों? क्योंकि जो रेशो है इट शुड नॉट चेंज. अब ये 3 into 5 किया तो 15 आया ना, तो ये 5 into 5 करना पड़ेगा. 5 into 5 करना पड़ेगा, तो जिंक आ जाएगा 25. जिंक आ जाएगा हमारा 25. पूछा क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टिन इन दैट अलॉय. ठीक है, तो जिंक है 25x, कॉपर है 15x और ये है 9x. टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? अभी व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टिन इन द अलॉय, मतलब अपने को टिन अपॉन टोटल निकालना है. टिन अपॉन टोटल निकालना है, तो टिन कितना है? 9x. टोटल कितना है? 25 plus 15, 40. 25x plus 15x plus 9x, which is 40 plus 9, 49x. तो 9x upon 49x, x cancel, 9 by 49. 9 by 49. ठीक है. A person distributed 27,000 among 3 persons, A, B, and C. If A gets thrice as much as B and B gets twice as much as C, and a person distributed this much among A, B, and C. तो 27,000 ये है A, B, and C को. A, B, and C को. A gets thrice as much as B. A को मिला 3B. And B gets twice as much as C. तो B को मिला 2C. Then find the amount received by C. Amount received by C क्या रहेगा ये पूछा है. तो A upon B क्या है? 3/1. And B upon C क्या है? 2/1. 2/1. तो A is to B का रेशो क्या आया हमारा? 3:1. B is to C का रेशो क्या है हमारा? 2:1. कॉमन वेरिएबल 2 पे लेके आ जाएंगे, है ना. बी कॉमन वेरिएबल है, 1 and 2 अलग अलग वैल्यू है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 and 2 का एलसीएम तो 2 रहेगा. 2 वैसा का वैसा, तो सी भी वैसा का वैसा, है ना. दिस 1 is multiplied by 2, so this 3 should also be multiplied by 2, तो ये 6 आ जाएगा. तो A is to B is to C का रेशो क्या है हमारा? 6:2:1, which means 6x, 2x and x. ठीक है ना, 6x, 2x and x. Then find the amount received by C. तो A plus B plus C कितना है हमारा? 27,000. A की वैल्यू कितनी आई हमारी? 6x plus 2x plus x is equal to 27,000. That is 9x is equal to 27,000. That is x is equal to 3,000. है ना. Find the amount received by C. Amount received by C is x. X is nothing but 3,000. तो amount received by C is nothing but 3,000. ठीक है, which is option A.
ठीक है, दिस हाउ यू नीड टू कंप्लीट. दिस इज द बेसिक ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन. इससे आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन. For more such videos, you can connect with us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.